About today boundaries in relationship, and boundaries per se is a very important word, and a lot of times we don't even understand why they are needed. So we'll be focusing on that aspect today and understanding why boundaries are needed and Hi should Ashima, how are you? be made. Good afternoon, Archika, how are you doing there? Good, very nice, but बहुत ही गर्मी हो रही है. It's very sunny today. Sorry, I can't hear you. What are you saying? I'm saying the weather is getting hot. Yeah, weather is getting hot, and the relationships also get hot when we Hot. are not Yes. able to take care of things the way they should be. And we have Deepak as the first person here. Hey, Deepak, it will be lovely to hear you, as I keep saying always. So, Achika, we were talking about trust and we were talking about the elements yesterday which really make the trust happen. And trust per se, it has to be consistent. It has to be, we have to be bringing in people together to understand. And for that, we Hmm. have to share. And when we share, many a times we are not able to build those boundaries. So, what do you think about those boundaries, and how do you think people should really realize that making boundaries is important? First, I think we have to understand what kind of relationship it is. Then we set our boundaries at what are our limits. That I'm a friend with somebody. So initially, if I'm meeting first time to somebody, then what all, I should share till what limit I should share first. Initially, in first meeting, we don't feel like sharing sometimes. We are if we are You introverts, we don't remember, talk. Archika, that we are in a season where we're talking about why romantic relationships go bad. And this is season 3 where we're talking about romantic relationships and why boundaries in romantic relationships are important. And there is a question from Deepak, why boundaries are. Boundary is important, sir. अगर बहुत ही if we take a very this thing India Pakistan, we cannot cross boundary without permission. If we cross it, there is a bombard. You know. So we have to be in our boundaries. We should know. So this is a one very I'll say एक बहुत ही कॉमन सा रीजन है कि किसी भी बाउंड्री को आप क्रॉस करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. You have to face those consequences. So that is why we always make boundaries. कोई भी चीज even when we are making a garden, so we make sure that you must have seen everybody that where the trees and the small sapling is there, we make kind of circle and we dig little bit around and we make a boundary. So we are setting a limit that if we are pouring water or we are giving उसमें कोई भी mineral nutrient ऐसे कुछ भी डाल रहे हैं खाद वगैरह, so it should remain in that boundary to give the good effect to that sampling and for a growth. उसको बढ़ाने के लिए इसमें काम आता है. If the boundary is not there, everything will be out. That plant might not get anything what that plant is needing for the growth and for the good health or to be there. It might die after some time. So same with the relationships. When we are working and we are actually within the boundaries, then it actually helps to grow that relationship in a healthy manner. What do you say, Ashima? See, when we talk about boundaries, and down there, Manisha has a question to ask how to set boundaries for oneself and for the others. See, let's understand the concept of boundary. When I talk, as Archika very rightly said, that if you are making a flower bed, and if you don't have a boundary, you would not know which area till which point you have to go. What is your place till which you can really have the plants growing? And when you talk about the boundaries of the countries, ideally, as human beings, as countries, when we talk about Vasudev Kutumbakam, we are talking of everybody as one, everybody as together, everybody as one family. But there is something called giving respect to each value system, to each person, to each person's space. So when I say boundary, for example, I may come out as a person who is very happy, who's always ready to talk to people, who's always ready to interact, who's really always ready to answer questions. And if people are there, I would really be happy to talk to them, understand their concepts, and make them understand or listen to people. But
In my personal space, when I want to spend time with myself, I really need a time to be taking off from the rest of the world, just being with myself. That is about setting a boundary. That time when I'm wanting to be alone, when I'm wanting not to be disturbed, I would not want anybody to, try to get in and think as if that particular time is the time when anybody can just get in just because they are in relationship with me. So that is what is a boundary, and I would want to get on to a proper definition. A healthy boundary is a personal limit or guideline which we set for ourselves, for our own well being, to maintain our identity, and we ensure mutual respect for each other. So when I say, let's say, there may be certain people, like when I say it is always important to talk in open transparency and be able to open and not have things shoved under the carpet so that the relationships are taken care of well. There, when we are talking of all that, we have to know where are the lines. How much can I tell? How much I have not to tell? But when we talk about boundaries, there are boundaries of different kinds, guys. That is the reason when I talk about personal space. Now, my personal space can be emotional, it can be physical, it can be time bound, it can be communication bound. Now, when I say emotional boundaries, a lot of people emotionally, when they are not able to speak out, they would want to take some time with themselves before they can bounce back. So a lot of people would want to have emotional boundaries. This is the time when they allow others to just be away from them, to have that experience and express emotions with themselves. And that time they may want people not to disturb them. Again, when I talk about emotional boundaries, we all as individuals have our own limits, our own boundary space which we make. When I talk about physical boundaries, we all have, personal spaces of ours. Physically, we want to have our own space. When you must have seen a lot of people. When you come into a lot of close connection with them, if you go very close to them, they will step back. अगर आप मेरे बहुत क्लोज आ जाते हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब आप उनके साथ खड़े होके बात कर रहे हो, आप अगर उनके बहुत पास जाना की कोशिश करोगे तो वो पीछे हटते हैं. क्यों हटते हैं? उन्हें लगता है कि कोई उनकी पर्सनल बाउंड्री स्पेस को इन्वेड कर रहा है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे डोंट वांट टू बी इन्वेडेड एंड दे टेक अ स्टेप बैक टू मेक श्योर their physical boundary is not broken. So it is really important to understand the other people and to understand yourself. आपका पर्सनल स्पेस क्या है? आप अपनी पर्सनल स्पेस में फिजिकल बाउंड्रीज में कितने लोगों को, किस तरह के लोगों को कहाँ तक आने दे सकते हो? There is a concept of Johari window also. One of these days we can talk about that also. And then there is a time boundary, guys. A lot of times when you are with friends, after a time you feel nahi bhai ab to chalna chahiye. So there are time boundaries. You spend time together in a romantic relationship. When you're spending time together, now you 24/7 you can't be together. You want some special time for yourself, or you want it with your friends, or you want it with your other family. So you would have to give the time boundaries also pay attention. Then there are communication boundaries also. And when you talk about communication boundaries, it actually means that you are able to explain to each other that there is a clarity and understanding and the communication is honest. That is what is boundary space about. And we have with us Minsha. Mansha, hi. Good afternoon. Would you want to say something? Were you hearing to what was being spoken? No, I think it's first circle. Mansha, can you unmute, dear? Would you want to talk? Good afternoon, Mansha. We can't hear you, dear. Okay, Mansha probably is
not very comfortable. So, Ashima, Archika, I think yeah, it's not wrong to say that boundaries is a kind of, one of the form of self-care also. absolutely. When we are setting our boundaries, so we are actually protecting ourselves and we are Right. giving that kind of feeling to others when we are not crossing their boundary that they are also safe with us. Hmm. Otherwise, in common interaction when we are in get together or something, and there's somebody, they keep on asking some personal questions. They keep on, invading in your personal areas. And what is Hmm. happening there? Oh, I heard something about that in your family, something. Then we feel like insecure, and we feel like why he's talking and why he's asking all this. Oh, Hmm. that's none of his business, none of her business. Then we start making distance with that person. That other person might not be knowing that what he is asking or she is asking is out of concern, or why when she is asking, so she should not, because she's not aware about the limitations and boundaries and everything. The Hmm. clarity is not there in her mind, and they keep on asking every time they keep on asking. So that is where we need to understand our boundaries you know True. Very true. so Very true. So it's giving like a safe environment to others and to ourselves, And Absolutely. sometimes it's like Absolutely. everyone has different beliefs, ideas, and values. So if we take this category of intellectual boundaries, so it actually helps us to respect one another's different viewpoints. You know, Sometimes you share your opinions and your feelings, and you're not able to do it if it's not Hmm. there, if you Hmm. disagree with somebody or your loved one, so you actually feel like that should I not, so it's so much worrying about whether your opposing view hurt another person's feeling, or it's more about respecting their right to hold their own opinion. Absolutely, and Archika, that is the reason it is really important to define boundaries well with each other, and couple all the more, because couples relationship is something, or a romantic relationship is something where most of the time both the partners take it for granted that they have the right over each other completely and nobody can come in between. So the boundaries are basically lost and there are no boundaries, and sometimes people get hurt if a person says that I want my personal space, and that's a phrase which people will not be able to understand. So I think in a relationship, like we keep talking about couples and we keep talking about people, it is really important for people to define relationships well, ताकि आगे चल के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो. एंड कपल्स में प्रॉब्लम्स ही इसीलिए आती हैं क्योंकि पहले तो सब बहुत कुछ रोजी दिखता है, वी आर रेडी टू गो टू एनी लिमिट, बट सडनली वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी, and that identity is put to stake in that relationship, and so we want to go back, we want to have our own space, but because we had not defined it for our partner, or we had not defined it together, the problem starts कि भाई पहले तो तुम हम मुझे हर चीज बताते थे, हर चीज मुझे मेरे साथ करते थे, अभी सडनली तुम्हें माई स्पेस चाहिए. What is this my space? Right? Does that make sense, Archika? And we have Rajesh also with us. Hey Rajesh, good afternoon. How are you doing? राजेश, कैन यू अनम्यूट? वो सलमान शाहरुख खान का फोटो लगाया है राजेश ने, आई थिंक. हे राजेश, यू लाइक शाहरुख खान? राजेश, रुजेश, इट्स रुजेश अदकीने. I think his network is unstable. You're saying something, Archika. Go on. No, I was saying same thing कि जो romantic relationships होते हैं वहां पे I think problem तभी आती है when people they are holding their opinion and they are not sharing, but the other person is feeling why he or she is doing that, Hmm. because they don't understand that we do have a right. There's nothing like that we have to tell everything और सब कुछ ही बताना है, सब कुछ ही तभी कह देना है. नहीं, देखो, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी तो जरूरत है, मगर ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ It's like बाउंड्री a होना भी जरूरी है, राइट? ना इट्स लाइक टाइमिंग फाशिमा, मे बी दैट इज नॉट अ करेक्ट टाइम कि वो चीज तब बताई जाए या कही जाए. I think that is why when we start a relationship, the thing is that when people start relationship, in the beginning, if people can get realistic and try understanding each other well, instead of just trying to make each other completely good about oneself, a lot of people you must have heard कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो ये कैसे हो गया. So which means when we are in the desperate need of a relationship, we go to any limit.
बट जब हमको एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमारा एक रिश्ता है हमारे पास, हम लूजन अप करना चाहते हैं, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी में आना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहां होती है क्योंकि सामने वाले को तो एक गलत आदत लग चुकी है कि भाई ये तो मेरे लिए कुछ भी करेगा, मेरे लिए कुछ भी करेगी, मगर उसको ये नहीं पता होता है कि इसकी खुद की भी आइडेंटिटी है जो अभी तक स्टेक पे थी. So I think that is why when you have rightful expectations and boundaries, that makes sense. So I'll quickly run through why it is important to make boundaries, setting boundaries in relationships and romantic relationships all the more important. Manisha, I hope your question is answered. And Deepak has to say something. Deepak says, I don't think boundaries are important in relationships. Okay, Deepak, that can be a perception. But let's understand if they are important or no. And if you want to have a communication, let's talk and understand why you feel it should not be there. Now, when you set a boundary, there is something called respect and individual self, which are important. So when I say, this is my personal space, this is my personal time, I would want you to respect this emotion of mine that इस टाइम के ऊपर मुझे अपने आप अकेले अपने साथ रहना है. एंड जब आप अपने पार्टनर को ये कम्युनिकेट करते हो तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट आता है कि आप भी एक इंसान हो, यू हैव अ पर्सनल सेल्फ. एंड आप अपने पार्टनर को भी अगर वो स्पेस देते हो तो उसको ये लगता है कि हाँ, मुझे भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है, मेरी आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है. और जब आप डिफाइन करते हो ना क्लियरली बाउंड्रीज को, जब एक दूसरे को समझते हो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, प्रॉब्लम ना हो. प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. देखो, बाउंड्रीज हम सब बनाते हैं दीपक. अगर आपको लगता है नहीं होते, वी वुड हैव टू डिस्कस विद यू, अंडरस्टैंड हाउ यू फील. हम सबका एक पर्सनल सेल्फ है, हम सबकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से शेयर करते हैं. हमको कुछ टाइम चाहिए होता है जो दोस्तों के साथ बिताएं, हमें कुछ टाइम चाहिए होता है जो फैमिली के कुछ और मेंबर्स के साथ बिताएं. 24 घंटे तो आप एक रिश्ते के साथ नहीं रह सकते हो ना. सो व्हेन यू क्लियरली डिफाइन दैट and when you respect each other for the boundaries, you are able to understand that you are two different individuals, and that is how there is a healthy interaction happening. You see, healthy interaction कैसे होगी? अगर मेरे रिश्ते में मैं अपने हस्बैंड को या मेरे हस्बैंड मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि भैया मैं जब भी बोलूं, रात के 12 बजे बोलूं, सुबह 5 बजे बोलूं, ये मेरे लिए वहां पे होनी चाहिए. डू यू थिंक ह्यूमनली इट इज पॉसिबल, अर्चिका? Is I it think, not? Ashima, what Deepak is asking and what he is thinking, please, Deepak ji, correct me if I am wrong, and please tell me if I am right also. That आपका कहना है कि I don't think boundaries are important in relationships. Fine. So, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये समझना है कि किसके लिए बाउंड्री का मतलब क्या होता है. आपके लिए बाउंड्रीज क्या है? ऐसा तो नहीं कि बाउंड्री आप ये समझ रहे कि हमें एक दूसरे से कुछ छुपाना है, एक दूसरे से कुछ दूरियां बनानी है, या एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है. वो वाली बाउंड्रीज नहीं. हम एक लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे कि इसके को क्रॉस करके हम उधर नहीं जाएंगे, या इस तरह से रिलेशनशिप में ये वाला मूव नहीं लेंगे. नहीं, वो बाउंड्रीज की डेफिनेशन जो है ना, वो बहुत क्लियर होनी जरूरी है. क्योंकि कभी भी किसी भी चेंज को हम लाइफ में लाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कंसेप्ट हम समझना चाहते हैं, तो पहले उस कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना, और हमारी लाइफ में उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये बहुत जरूरी है. एंड आई एग्री कि आपको लग रहा है बाउंड्रीज जरूरी नहीं है, क्योंकि मे बी आप सोच रहे हैं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं. मतलब रिश्ता है तो है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो हम जुड़ गए हैं. अब उसमें बाउंड्री कहाँ पे खींचेंगे, लाइन कहाँ पे खींचेंगे, हस्बैंड वाइफ में, या रोमांस में, या रोमांटिक रिलेशनशिप में. क्या नहीं कहना मुझे, क्या उसे एक्सप्रेस नहीं करना, क्या मुझे क्या नहीं बताना. अच्छा, अब स्पेस की बात की आशिमा ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम सोच रहे हैं कि स्पेस, अच्छा ठीक है, तुम्हें अपना जो करना है तुम अपना करो, मुझे अपना जो करना है मैं अपना करूंगा. तो ये तो एक तरह का सेपरेशन वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है. So maybe you are getting on that track, or maybe you are thinking on that when we are discussing. मैं और आशिमा जब ये बताना चाह रहे हैं, but हमारा जो बताने का purpose या what we want to discuss here, boundaries are not those boundaries which are strict. बैरिकेड नहीं लगाने हमने फेंसिंग नहीं करनी है रिलेशनशिप्स में. Boundaries are like where we can maintain our self-respect, when we can maintain a healthy relationship, when we know when to step back and when to step forward. These are the boundaries we are talking about here. He's saying Let's got talk it. of an Thank you. example, Archika.
Before that, Iftikhar, good afternoon. Would you want to speak something, dear? I can see 3 people, but none of them are speaking anything. I can see Rujesh, Iftikhar, and Mansha. Guys, would you want to speak something? Would you want to say something on the speaker panel, or you just want to listen? आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं, so that we can Right. elaborate on that, we can make on that, Absolutely. you know, that will give us a Absolutely. clarity, और आपको भी एक clear picture मिलेगी, what we want to tell, what we want to explain, you know, we can make our theories and context related to that, because right अच्छा, now अब what ये we are talking अर्चिका is our this thing. एक केस स्टडी देते हैं. केस स्टडी देते हैं. लेट्स सी इफ दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग. राइट. सो केस स्टडी ये है कि एक लड़की है, लेट्स से शीला, एंड लेट्स से देयर इज अ गाय कॉल्ड राजेश. नाउ दे बोथ हैव बीन डेटिंग ईच अदर फॉर 1 year. Now, Rajesh is always telling this one कि भाई तुम मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं देती हो, तुम क्यों मुझे मतलब नहीं आती हो, और जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो, मीटिंग है, ये है, वो है. अब ऑन द कॉन्ट्ररी दिस गर्ल हैज़ वेरी वेरी हैवी शेड्यूल इन दिस ऑफिस. ऑफिस के अंदर उसका टाइम बहुत एक एक मिनट कीमती है, और अगर उसका बॉयफ्रेंड उसको कभी भी किसी टाइम पे भी बुलाता है तो वो किसी भी टाइम पर नहीं जा सकती है. तो जब वो बुलाता है वो नहीं जाती है, बोलती है भाई मेरा ऑफिस में काम है, जॉब बहुत डिमांडिंग है. अब वो उसको समझा नहीं रही है और वो समझ नहीं रहा है. दोनों इस बात के ऊपर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं. वो फोन करता है आ जाओ पार्टी पे चलना है, वो कहती है काम है. अब दोनों इस बात को डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं. दोनों अपनी अपनी ग्रजेस ले रहे हैं. What is happening here? Can somebody tell me? Can somebody discuss this? Archika, was that case clear to you? Yeah, अब यहाँ पे वही है कि but if somebody is not coming up, then we have to go forward. But first, please comment Yeah. either or come up and tell what you are getting. Iftikhar is there, and I can see other people on panel as well. I don't know where they are. Rujesh is there. If Iftikhar is there, sir, Yeah. any of you, please join and speak. Okay. Archika, I am saying the case. Guys, listen to this case again. एक लड़की है जिसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको कभी भी लास्ट मिनट के ऊपर बोलता है आज पार्टी है आ जा. अब वो उसको कहती है नहीं आ सकती, ऑफिस में काम है. अब दोनों के बीच में इस बात को लेके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मगर लड़ाई हो रही है. वो कहता है मैं जब भी फोन करता हूं तो बोलती है काम है, वो बोलती है होता है काम तो मैं क्या करूं. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग हियर? इस जगह पे क्या हो रहा है? वी ऑल्सो हैव नूर. नूर, गुड आफ्टरनून. नूर, आपने केस सुना? डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट बच्चा? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून. आदाब मैम, आशिमा मैम, अचका मैम, आप सबको भी. मैम मेरे को ना ये सुनने के बाद अगर से वैसे सिचुएशन में हो तो मैं ये करती कि मतलब पहले ना उन लोगों ना समझ नहीं पा रहे कि उन लोगों का वो जो क्या रहता. अभी जैसा कि बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो कहाँ पे क्या करना है बोल के. तो मैं है समझो वो सिचुएशन में मैं पहले उनको बताती, बैठ के प्यार से समझाती कि देखो मेरे ऑफिस टाइमिंग ऐसे है, और अगर से मेरे को और भी ज्यादा काम के वर्क प्लेस में मेरे को और भी ज्यादा प्रेशर और टाइम है, तो ये बात को तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो. और जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता मैं आपके साथ बिताने की पूरी कोशिश करती बोल के मैं प्यार से समझाती और समझती उनको भी कि हाँ मैं मानती हूँ कि आपको भी मेरे से वक्त बिताने का मन करता है, लेकिन मेरे को भी करता है, लेकिन काम के बारे में भी नूर, सोचना इसके अंदर पड़ता है. मैंने एक बात बोली थी बच्चा कि वो कभी भी किसी टाइम पर भी पार्टी फिक्स करके फोन करता है चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं. तो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उसको टाइम देता है कि चलो 2 दिन के बाद तुम अपने ऑफिस में बोल देना कि भाई हमें बाहर जाना है तो तुम प्लान कर लेना. वो उसको मालूम नहीं है कि वो ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती है. उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है. तो वो नूर 1 मिनट रुकेंगे. उमेश लिखते हैं क्योंकि शीला का दूसरा बॉयफ्रेंड है. उमेश अगर ये ह्यूमर में है तो चलो ले लेते हैं. बगर यही चीजें जो है ना
ये और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं और ये हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाती हैं, कम्युनिकेशन गैप डालती हैं और द रिलेशनशिप्स ब्रेक. उमेश, would you want to come on board and tell us if you're just cracking a joke or you're seriously talking about it? बट ये आशिमा, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, जब शीला बार बार मना कर रही है तो जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके दिमाग में ये भी आ सकता है तो कि ये ऐसा तो नहीं कम्युनिकेशन है. एरर है ना अर्चिका. यस, कम्युनिकेशन गैप में पर्सपेक्टिव में आ सकता है, एंड दैट इज हाँ, व्हाई ही इज ट्राइंग एंड ही इज टेस्टिंग हर अगेन अगेन. एग्जैक्ट. और वो ये नहीं, वो उसको ये लगता है कि मैं इसको जब भी बोलूंगा ये मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगी, मगर वो लड़की उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है कि भाई मैं इंस्टेंटली अपने ऑफिस से छुट्टी लेके बाहर नहीं आ सकती हूँ. तो यहाँ पे उसने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं है, एक कम्युनिकेशन का बाउंड्री नहीं है कि भाई आई कैन नॉट कम आउट ऑफ माई ऑफिस एवरी टाइम यू टेल मी. एंड सो दे बोथ विल हैव टू सिट डाउन. और अगर लड़के के मन में आ रहा है और दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दे विल हैव टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री बाय सेइंग दैट यू कांट जस्ट कॉल मी एवरी टाइम. बिकॉज देखो, अगर आपको कोई फोन करेगा, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की आ जाओ पार्टी करते हैं, और आप बार बार मना कर रहे हो, तो आपको भी एक अजीब लगेगा, उसको भी लगेगा. मगर टू सिट डाउन एंड सेट दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उमेश इज नॉट कम ऑनलाइन. उमेश, यू डोंट वांट टू कम एंड स्पीक? आप अच्छा बोलते हैं हमें लगता है. वेयर इज उमेश? उमेश, आई हैव इनवाइटेड यू. नूर इज सेइंग हाँ, ओके. हमारे एग्जैक्टली अर्चिका ने बिल्कुल सही कहा जो उमेश ने बोला. ये एक दिमाग के अंदर एक थॉट आ सकता है, डिस्टॉर्टेड थॉट, कि ये मुझे अवॉइड कर रही है, ये तो मेरे साथ मिलना ही नहीं चाहती है, इसका तो कोई लगता है दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है, ये मुझे छोड़ देगी. तो वो और ज़्यादा तंग करेगा लड़की को, और लड़की भी तंग होगी, तो रिश्ता अच्छा होने की बजाय खराब हो जाएगा. राइट? Giving you another case study, guys. This case study is, there is a girl and a boy. I'm not putting any names. So, they have moved in together. They okay. Iftikhar wants to say something. Go on, Iftikhar. हेलो Yes, Iftikhar. मैम, मैं इस पे कुछ अलग सोच रहा था. जी बोले ना. मैं दोनों का रिलेशनशिप क्या, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, राइट? जी. हाँ, जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अब वो मोहब्बत का मतलब क्या हो जाता है? मोहब्बत का मतलब होता है एक दूसरे की परेशानी को, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना. जब वो उसको समझ नहीं रहा है, उसकी जरूरत है, मोहब्बत का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट, जीरो प्रॉफिट. जब वो समझ ही नहीं रहा तो उसके आपस में दोनों में मोहब्बत ही नहीं है, प्यार ही नहीं है. वो समझेगा तो तब ना, जब उसको समझाया जाएगा. हाँ? भाई उसको तो लगता है क्योंकि हम दोनों मोहब्बत में हैं, तो हम तो बस हम तो मोहब्बत में कब समझाने की जरूरत ही नहीं होती है. इफ्तिकार का एक व्यू पॉइंट है. इफ्तिकार बोलते हैं मोहब्बत में समझाने की जरूरत नहीं होती है. इफ्तिकार, आपको ऐसा क्यों लगता है? जहाँ मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट इंटरेस्ट जहाँ पे आ गया वहां पे मोहब्बत नहीं है. यहाँ प्रॉफिट और इंटरेस्ट की बात कहाँ हो रही है? हो गई ना. यहाँ मैं तो तुमसे मिलो, तुमसे मिलना है, आज मिलना है, कल भी मिलना है, परसों भी मिलना है. तो आप नहीं जब रिश्ते में होते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो दूर दूर से थोड़ी करते हैं, बैठ के आपस में. हाँ, आपस, लेकिन वो बताइए मिलना, बताइए, उसके पास बोलिए. प्रॉब्लम है, ऑफिस है, छुट्टी लेना पड़ेगा, वो छुट्टी अप्रूव होगा नहीं होगा, वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम है. जी जी तो जी. वो समझना होगा ना, मुझे ही समझना पड़ेगा. तो वो बताएंगे तब तो समझेगा ना, कि उसको ये बताएगा, उसको हाथ पकड़ के आराम से बैठ के, कि सुनो, तुम मुझे बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं आ पाती हूँ, मगर क्योंकि मेरा ऑफिस में टाइमिंग्स ऐसा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं किसी टाइम पर भी उठ के कहीं पर भी चले जाऊँ. आपको अगर कोई पार्टी प्लान करना हो तो आप 4-5 दिन का टाइम लिया करो, ताकि मैं अपने ऑफिस से परमिशन ले लूँ. ये तो एक अच्छी कम्युनिकेशन है ना. हाँ, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं सर. एक कर रहा है जो कि कम्युनिकेशन गैप है, जो कि नीचे जा रहा है जिसका ग्राफ, और दूसरा है एक्सपेक्टेशन जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है. तो बैलेंस नहीं आ रहा. हाँ, तो मोहब्बत में
ये नहीं होनी चाहिए। बच्चे, अगर आपको भूख लगती है तो आप बताते हैं या सामने वाले को खुद समझ आ जाता है कि आप भूखे हैं? ये एग्जाम्पल वो वहां पे सेट नहीं हो पा रहा है। सर, सेट ऐसे होता है कि जब हम कुछ उम्मीद रखते हैं या किसी से कुछ समझाना चाहते हैं तो बहुत कुछ कई बार बोल के बताना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप बताते हैं कहाँ दर्द है। स्टमक इतना बहुत बड़ा एरिया है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, स्टमक इतना बड़ा एरिया है कि फूड पॉइजनिंग कहाँ पेन करती है, इन्फेक्शन कहाँ है और वायरल का कैसे होगा, उसके लिए हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो रिलेशनशिप में भी जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं या कोई चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार कन्वे करना होता है कि सी, ये मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो दूसरे वाले को तब समझना पड़ता है कि किस तरह से अगली बार उस चीज को मॉडिफाई करना है या अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना है या उस सिचुएशन से किस तरह बचना है। कुछ बिकॉज एक्सपेक्ट हर चीज कुछ ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल ब्लैक या व्हाइट हो, है ना? बिल्कुल ऐसे एक बार में तो आपका रिलेशन कहीं शुरू हो तो आप शुरू में तो एक पेपर पे लिख के नहीं दे देंगे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूँ, यही करूंगा, ऐसे ही रहूंगा पूरी लाइफ, ये वाला ये जो और स्लिप है आंखों ही पढ़ते आंखों में रहना। तो सारे इशारे नहीं हो सकते हैं अब ना। मैं सोचता हूँ कुछ एक्सपेक्ट ना करना ही मोहब्बत है, मतलब प्यार है ये ये। फिल्म वालों ने बहुत इंसान को नहीं नहीं। वो एक्सपेक्टेशन की हाँ, बात नहीं है इफ्तिकार, रिश्ता है तो एक्सपेक्टेशन होगी। सो कैन यू अच्छा शेयर रुको, योर एग्जाम्पल? इफ अगर आप ये बिलीव करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट कि आपका ये बिलीव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका, बहुत अच्छा बिलीव है आपका, बट आप अपने बारे में शेयर करके बताएंगे कि आप खुद अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस करते हो और ये वर्क करता है? इफ्तिकार आप 1 मिनट सोचें, हम कृति और मिस्टर कॉन्फिडेंट से पूछ लें कि वो ये डिस्कशन को सुन रहे हैं, क्या उनके व्यू पॉइंट्स हैं कोई और इनके ऊपर। कीर्ति, Yeah, hello, mom. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, आर यू लिसनिंग टू द डिस्कशन? Yes, mom, but to be very honest, I'm not getting what you people are discussing. We are discussing a case, and वहाँ पर if a boy and a girl, if they are going together, they are in a relationship, the guy feels that he can just pick up the phone and call the girl and tell her आजा आज पार्टी करते हैं, मगर every time he does that the girl has to say sorry I cannot come because I have work in my office, और उसके प्रेशर होता है और वैसे उठ के ऑफिस से नहीं जा पाती है बिकॉज शी इज नॉट कम्युनिकेटिंग एंड मेकिंग अ हेल्दी बाउंड्री ऑफ कम्युनिकेशन। हियर दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन होती है, लड़ाई होती है, प्रॉब्लम होती है। और इफ्तिकार बोल रहे हैं कि जब दोनों के बीच में लड़ाई हो ही क्यों रही है, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मोहब्बत में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, मोहब्बत तो मोहब्बत है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग एंड वी आर ट्राइंग टू टॉक टू हिम कि जब आप रिश्ते में हैं तो एक्सपेक्टेशन तो होती है, रिश्ते को तो अच्छा बनाना होता है। और जब तक अर्चिका ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि भूख लगती है तो हम किसी को क्या इशारों से समझाते हैं कि भूख लग रही है, हम खाना मांगते हैं कि भूख है, हम बोलते हैं खाना खाना है। उसी तरह अगर किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन एरर है, जब तक बैठ के उसको सुलझाया नहीं जाएगा तो कैसे वो सॉल्व होगी? Yes, mom, right. Like नेक्स्ट they saying right. Like जब आपको like प्यास लगती है तो फिर आप पानी ही ढूंढोगे, आप वी खाना कांट नहीं हियर हर, ढूंढोगे, राइट? है ना? मेरा ओपिनियन ये है। कैन आई स्पीक हिंदी? हाँ हाँ प्लीज, जो भी लैंग्वेज आप या बोलना चाहो, मोस्ट वेलकम। ओके मैम। आपका नेटवर्क एरर है मैं बच्चा ये कहना शायद। चाहूंगी कि या हाँ, वो एक्सक्यूजेस भी है। हेलो मैम। जी जी बोले बोले। हेलो, एम आई? यस मैम। मेरा ये ओपिनियन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनालाइज करना चाहिए कि या मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रही है। फर्स्ट मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि उसको गलत साबित करने के लिए कि हाँ तुमने कहा कि ठीक है काम है, तो काम है भी या नहीं है ना? हमें किसी को गलत प्रूफ करने के लिए हमें मेरे पास इनफ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना साबित करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये करना चाहिए, है ना? और दूसरा ये कि अगर हाँ मैं उसमें कामयाब होता हूँ कि हाँ ठीक है मैंने उसको गलत साबित कर दिया है कि हाँ वो काम के लिए तो नहीं बोल रही है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड,
ओके। सो दूसरी चीज ये कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप थोड़ा हेल्दी हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत होती है ना। अगर वो जी। पर्सन इम्पोर्टेंट है तो वो वापस आएगा और या आएगी। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो नहीं आएगी, है ना। तो स्पेस इज समथिंग वो आपको क्लियर करता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। ओके। एंड यस मैम, दिस इज माय ओपिनियन। आई थिंक मैं इतना ही सोच पा रही हूँ अभी के लिए। हाँ, नो, बहुत अच्छा, अच्छे से एक्सप्रेस किया आपने जो भी, मगर आपने भी एक डिटेक्टिव वाला एलिमेंट तो दे दिया कि अगर मैं बार बार बुला रहा हूँ और लड़की बार बार मना कर रही है तो कहीं इसका कुछ और चक्कर तो नहीं है, इज शी नॉट गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स, कि इसका मेरे में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। और यही हमने सिचुएशन जो ये बताया था ना, सिचुएशन ये था कि वो सच में ऑफिस में बिजी है और वो लड़के को उसने ये कम्युनिकेट ढंग से नहीं किया है, तो लड़के को लगता है क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं, हम तो प्यार में हैं, मोहब्बत में हैं, जैसे कि इफ्तिकार ने कहा प्यार और मोहब्बत में तो भाई जब है तो है, जब बुलाऊंगा तो आ जाएगी। मगर आशिमा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई थिंक इट्स गेटिंग थोड़ा सा तो कंफ्यूजनिंग हो रहा है। इस सिचुएशन में मैम अगर वो सच में बिजी है ना तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस है ना, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपके पास तो हाफ एन आवर होता ही होगा ना। आप सोते ही होंगे, आप ऐसा तो नहीं है कि पूरी रात आप जागते हो, है ना। तो आपको वहां से अगर कोई पर्सन इम्पोर्टेंट है तो आपको वहां से टाइम निकालना चाहिए। लाइक आप कम सो 1 घंटे, है ना, 2 घंटे कम सो, लेकिन वीकली तो एटलीस्ट राइट, एक दूसरे को मिलो, आप टाइम दे ही वही सकते हो। हम वही कह रहे हैं। सो दिस इज माय व्हाट यू आर पॉइंट। सेइंग इज आप हाँ, एक मिलो, बिल्कुल मिलना ज़रूरी है और एक दूसरे को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सच में बिजी हैं और अपने रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर को ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आप जब भी फ़ोन करते हो मैं उठ के नहीं आ सकती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं फटाफट आ जाऊँ, बट मेरे ऑफिस आवर्स ऐसे हैं, ऑफिस की ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि नहीं आ सकती हूँ, और उसको बैठ के अच्छे से एक दूसरे को समझना चाहिए। और हाँ, अगर उसमें डाउट लग रहा है उसको क्लैरिफाई भी करना चाहिए कि भाई आप सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। अगर नहीं है तो स्पेस ले लेना चाहिए, नहीं तो एक हेल्दी बाउंड्री बनाना चाहिए ताकि रिश्ते में प्रॉब्लम ना आए। Let's hear from Pranjal and then we'll go back to Iftikhar and then Archika. She was wanting to do some change. Pranjal, you want to say something, dear? Yeah, ma'am. Hello, ma'am. So I was late, so I don't know the whole context, but after listening the conversation, so means what you were talking about, that if you are in that sort of relationship, if your relationship is somewhat toxic like that, so you should be not in that relationship. That's what I feel. Yeah, it's my opinion that because relationship is not everyone's cup of tea. Yeah. So you first of all you have to ask this question from yourself, yeah, whether you really wanted a relationship or not. Yeah. Either you are alone or lonely. Yeah, these two words might mean similar. Yeah, but there is a difference between these two. Alone is when you are happy with your own company, but lonely is when you seek someone's company, you are not happy with it. And so first of all ask this question, yeah, why to be in a relationship. First of all, everyone has this FOMO. There are many people who are single and did really well in life, yeah, means like Salman Khan and Dr. APJ Abdul Kalam. And there are also people who were in a relationship and they also did really well, yeah. Instead of becoming the distraction, it became their region for success. And 12th fail movie depicted it really beautifully. Means that was also a true story only about Manoj and Shraddha. Yeah, but if you want Shraddha, then first of all you have to become Manoj. Yeah, so that's what I feel, that you have to ask this question. So yeah, this was my opinion. वेरी ब्यूटिफुली पुट प्रांजल। खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता, खुद की बाउंड्री बनाना ज़रूरी है।
आप अपने आप को समझते हो, आपने अपनी बाउंड्री और अपनी पर्सनल स्पेस बनाया हुआ है, तभी आप दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट कर पाओगे, उसकी खुद की पर्सनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कर पाओगे, उसकी नीड्स और वांट्स को रिस्पेक्ट कर पाओगे, और बाउंड्रीज जो हमारी खुद की हैं या उसकी है उसको रिस्पेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम सबको अपना इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होता है, राइट? एंड वही इंडिविजुअल स्पेस इम्पॉर्टेंट है रिश्तों में। और एक कपल रिलेशनशिप में तो एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं that initially, because you're trying to prove each other that love which you have, that things go bad because you were not being realistic. The Archika, you may start before, but I'll read this one, bro. Shraddha, okay, what is it? Shraddha, sirf ek, okay. Now, Deepak, I will not read your comments. I would want you to come up and say. Ajay Kumar is also saying something. Ajay Kumar is here. Archika, let's hear to Ajay, but before we go on, आपने दो comparison draw किए, अब्दुल कलाम and APJ Abdul Kalam and Salman Khan. They are poles apart, my dear friend. They may be, Abdul Kalam was a different, I mean, I think there is no comparison. Salman Khan is an entertainer. You all might follow him, Salman Khan, for whatever he's doing. People try to follow his style and all, but he's just an entertainer. But what Dr. Abdul Kalam did is unmatchable. Go on, Ajay. I was just giving the example of their single life. I didn't compare their personality. Yeah. All right. So, do you think Salman Khan has been really single all his life? Think about it. Yeah. Go on, Ajay. Archika, Ajay. ओके एक्चुअली आशिमा, जो प्रांजल ने तीनों एग्जाम्पल दिए, तीनों हमारे उस पे फिट बैठते हैं अगर तीनों को हम एक वन बाय वन एनालाइज करना शुरू करें. सो लेट्स स्टार्ट विद Let's hear to Ajay. He's writing a comment and then you can start analyzing. Ajay? क्या अजय ने कुछ कमेंट लिखा है ना अर्चिका? कैन यू रीड दैट? मुझे कुछ समझा सकता है? आई डिडंट गेट इट. क्या समझना है आपको, बताओ. यू आर न्यू टू द ऐप अजय, आपको अनम्यूट करके कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं. अर्चिका, यू मे कंटिन्यू डियर. ओके, सो अब एपीजे अब्दुल कलाम जी से शुरू करते हैं. तो तीनों को अगर हम ले, प्रांजल ने जो एग्जांपल दिए तो तीन सेट की हुई थी. मिस्टर कलाम वॉज वेरी मच फर्म कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है, और उस गोल को रीच करने के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी इस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं जाना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. सो ही वॉज क्लियर विद हिज बाउंड्रीज. लेट्स टेक सलमान खान. सलमान खान की भी बाउंड्रीज है. जब भी कोई उनके पर्सनल स्पेस को बहुत ज्यादा इन्वेड या बहुत ज्यादा क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो उनको कट ऑफ कर लेते हैं. ठीक है, ही इज वेरी क्लियर what he want, how he want. Are you sure of that? There I have a doubt. I'm very sure of what you're talking about. Dr. Abdul Kalam, he was very focused, but with And Salman Salman Khan, Khan is, otherwise he would have got married. बट उनकी अपनी एक बाउंड्रीज है, उनकी अपना सेटअप है माइंड का कि क्या चाहिए, कितना चाहिए. ओके फाइन, आई एम गेटिंग दिस एंड इससे ज्यादा नहीं देना है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा. तो एक बाउंड्री सेट है उनकी. फिर प्रांजल ने जो 12th फेल का जो एग्जांपल दिया, तो वहां आई फॉरगेट द मनोज वाज अ कैरेक्टर नेम एंड द श्रद्धा वाज अ गर्ल, पर मनोज मेड इट क्लियर समवेयर एंड श्रद्धा आल्सो मेड इट क्लियर. एक क्लियरिटी थी और एक बाउंड्री सेट थी. श्रद्धा अगर चाहती तो वो मूव ऑन कर सकती थी, अगर उनको वो बाउंड्री एक्सेप्ट नहीं करती उनकी, क्योंकि मनोज की ये बाउंड्री के पहले ये काम करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पे आ जाता हूँ. They respected each other for their boundaries. रिस्पेक्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन भी था, रिस्पेक्ट भी थी और बाउंड्री सेट थी एंड दे वर रिस्पेक्टिंग ईच अदर. स्पेस एज वेल. स्पेस आई थिंक आशिमा में भी जब हम लोग स्पेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो स्पेस वर्ड है ना, वो कई बार एक गलत, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है बहुत लोगों के लिए. कि स्पेस चाहिए, क्या चाहिए भाई, किससे छुटकारा चाहिए रिलेशनशिप में, किस लिए स्पेस चाहिए. आई थिंक ये बहुत ज्यादा मैंने केसेस में और क्लाइंट्स और पेशेंट्स में देखा है कि जैसे स्पेस की बात आती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या रिलेशनशिप पे दूर होना है, क्या स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, अलग होना है, दूर हमसे अलग होके रहना है तो ले लो स्पेस, अपना पूरा स्पेस लो ना, छोड़ देते हैं हम आपको, लेट्स गेट सेपरेटेड एंड यू हैव इनफ ऑफ योर स्पेस.
So maybe the choice of word is also very important. What we are using, how we are using, where we are using. Because अभी हम बाउंड्रीज की जब अभी पहले आई वाज डिस्क्राइबिंग टू दीपक जी दैट कि बाउंड्रीज का मतलब हम क्या समझ रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो सकता है वो बाउंड्रीज का मतलब ही डिफर हो गया हो. रोहित हम उस बोलते हैं मैम is being in a relationship, is it can being in a relationship be an obstacle? No. Can be obstacle. No. It Again, can be and it can't be, right? It is both ways. what do you want? आपको If you're रिलेशनशिप not clear, right? या ऑब्स्टेकल बनाना है तो आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप में कि ऑब्स्टेकल बन जाए. अगर उसी को आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है, then you will start sorting out things and you'll make it a support system. True. So it's all on you. Everything. क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं, किस तरह Rohit से wants चाह to रहे हैं. speak. Can somebody make space for Rohit, please? Can somebody, yeah. Thank you, Pranjal. Thank you very much, dear. Rohit, please come in. Let me see if you're around. I'll just invite you. Has Rohit joined? I have invited him. It was Rohit Yadav, right? And Kirti says, yes, ma'am. It depends. It can be on the situation कि कब हमें क्या बोलना है. Critical Hello. situation. Yes, बोलिए. जी बोले. Yes, ma'am. I just want to say that ma'am just said right now that APJ Abdul Kalam make his boundaries that he doesn't want to be in any sort of relationship. So it might sound like it can be an obstacle for him. एग्जैक्टली वही मैंने आपने बहुत सही किया कि अभी उन्होंने समझ लिया ना कि उनको समझ आ गई कि अगर ये वाली चीज मुझे गोल को जाना है और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा. But He was many clear in people that. But I have balance a is different opinion on it. आप इतने फोकस्ड होते हो कि आप रिश्ते पे ध्यान ही नहीं दे पाते और शायद आपकी जिंदगी में कोई आना भी चाहे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि रिश्तों को टाइम देना पड़ता है भाई. बट isn't it आशिमा वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग कि किसी रिलेशनशिप में जाकर और उसको रून करने से, खराब करने से अच्छा है कि आप उस चीज पे फोकस करो जहां आप 100% देना चाहते हो. यू नो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. सब कुछ चाहिए पर कुछ नहीं मिल रहा. Again, it is a perspective. अगर Yeah. मुझे लगता है I can do something and if I have a very clear communication and I have drawn my boundaries and if I am in a relationship and I know my partner is being my support and my like you're talking about 12वीं फेल उसमें उन दोनों ने दोनों रिलेशनशिप में थे उसको उसको क्रैक करना था यूपीएससी और दोनों Yes, को ये ma'am. क्लियर था वो दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बन रहे थे. Right. So Dr. Yeah. Abdul Kalam, what he thought. रोहित आप कुछ बोल रहे हो बोलो. Yes, ma'am. I agree with you. I bit disagree with ma'am Archika ma'am that being in a relationship can be an obstacle. You can't focus on something. I don't think so. आई If डिडंट your से goal कि यू is कांट फोकस. आई सेड कि आप ऐसा फील करते हो कि आप उस रिलेशनशिप को नहीं कुछ दे पाओगे तो ऐसे रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि आप उस but रिलेशनशिप को ना शुरू like करें. you can say Mahatma Gandhi, he's been in relationship and they did so much thing for our country as well. See, I have no idea about his relationships and I have to get insight and awareness. If you can give me, most welcome. No, he's Not married. getting No, that's that what I'm side. saying. Yeah. Okay, guys. Let me just speak and then we'll give it back to Rohit and Iftikhar and anybody, Kirti and anybody down there, guys. Deepak, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था. आप आके बात करोगी तो अच्छा लगेगा. So guys, relationships are important and we all have that need to have a relationship. But रिलेशनशिप में क्लियर कट बाउंड्रीज होना. इट कांट बी कि भैया हमने लाइन एकदम घिस घिस के बना दी, ऐसा नहीं हो सकता है. बट यस, अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, trying to understand each other's individual self, trying to respect each other's space, trying to have shared vision with each other, trying to understand each other's perspective is very important. Go on, Kirti, you're saying something there. Kirti, are you saying something because you unmuted, dear? So it's very important. It's very important. रिश्ते आपके बहुत देखो, रिश्ते आपको बहुत टाइम सपोर्ट करते हैं अगर आपका विजन क्लियर है, आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया है, वो आपकी एनकरेजमेंट बनते हैं. आप
आपके पीछे खड़े होके आपको आगे धकेलते हैं। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं। मगर अगर आपके रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम है, आपने रिश्तों को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, आपकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन नहीं है, आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा कि इफ्तिकार ने कहा कि एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है इफ्तिकार। मोहब्बत है, मगर मोहब्बत है वो खाली मोहब्बत से तो ज़िंदगी नहीं चलती है ना, क्योंकि उस हम जब जीते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत तरीके से चेंज हो चुकी है। अगर आप देखिए समाज में, हम एक समाज में उठते बैठते हैं एंड देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड। सो हमको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए वेल कम्युनिकेट वेल करना पड़ेगा। और जैसे अर्चिका ने बोला कि अगर दोनों जो लोग हैं रिलेशनशिप में हैं, द कपल, इफ दे आर टुगेदर, इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंड बाय ईच अदर, दे विल मेक दैट रिलेशनशिप हैपन। इफ दे कांट, then either they will keep troubling each other or they will part ways. So रिश्ता अगर है तो उसको अच्छा कर लेने में भलाई है, और अच्छा करने के लिए एक दूसरे को अपनी अपनी बाउंड्रीज बनाना। Hashima, I would like to try with another example if I can Go. help Rohit, or maybe मेरे को समझ आ जाए शायद रोहित का perspective. So Rohit, if I say कि जो हमारे army people, they are based here and there, and every 2 years they get different posting. And they are having families, right? Everybody is having families and they are not moving. Everybody's family is not moving with them. It's not possible. But if they're calling them every now and then, because nowadays phone is there, cell phone is there, the communication is very easy, WhatsApp and everything is there. But when their family is calling every now and then and sharing each and every of their problem with that guy who is there on duty, maybe on the border, on somewhere, field, there's a 2-year peace posting and 2-year field posting, something like that is happening. So when they're in a field posting, so the situation is very unpredictable. We are not aware what's going on. But if the family is calling constantly, then what will be the state of mind of that person? Isn't this an obstacle? But once the family is saying, see, you take care where you are and you please don't worry about anything. Okay, we are here very nicely, we are doing good and we'll support you whatever you are doing. So please, आप अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो. दोनों सिचुएशंस में क्या हम एनालाइज करेंगे और किस तरह से रिलेशनशिप को हम असेस करेंगे? So, but second situation जो आपने बताई, in that situation also they are in relationship ना, they have mutual Exactly. communication between themselves. That's why they are doing such thing. That's Exactly. तो आपके आंसर आपके पास that doesn't mean you can't be in a relationship and just be alone for whole life and just ignore being in relationships, that it can become obstacle in your life. I don't think so. रोहित, यही आपको one minute, Hashima, sorry. रोहित, यही मैं आपको समझा रही थी कि मैंने कांट नहीं किया कि यू कांट हैव और यू शुड नॉट हैव, ये वाले वर्ड यूज नहीं करना चाहती, मैं नहीं करती। मैंने बस ये कहा कि आपका एक अपना जो सेट करने का पर्सपेक्टिव जो है, आपकी अपनी चॉइसेस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपने आप में क्लियर होने चाहिए रिलेशनशिप्स में कि आप उनको सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं और बना सकते हैं कि नहीं। किसी भी चीज में उसको सिर्फ इसलिए रखना अपने पास रिलेशनशिप को क्योंकि होना चाहिए और सबके पास है, रादर देन कि होना चाहिए और मैं उसको अच्छे से नर्चर कर सकता हूँ, ये डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। So अर्चिका मैम took the extreme point कि अगर आप एक दूसरे को तंग करने वाले हो तो भैया इससे अच्छा रिश्ता मत करो। And if you can really work it out and if you can really make things happen in the best of ways, you know how to draw boundaries, you know how to respect each other's individuality, you know how to respect each other's boundary system, personal values, you can be in a beautiful relationship. I hope that made sense to everybody. Thank you so much, Ashima. Thank you for explaining this way, but thank you so much. Iftikhar and Kirti and Rohit and anybody down there, do you have anything else to say before we put up another case here? Iftikhar is saying something, Archika. Would you want to read that? वही तो मैं बोल रहा था कि प्यार में तंग नहीं करना चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, प्यार में तंग नहीं करना चाहिए, पर प्यार में बात जरूर करनी चाहिए। अगर बात नहीं करेंगे तो भी आप तंग हो जाएंगे कि बात तो हो ही नहीं रही, तो प्यार कहाँ है? That's a very beautiful way of putting it, Iftikhar, and अर्चिका मैम ने बहुत खूबसूरती से बताया कि तंग नहीं करने के लिए बात तो करना ही पड़ेगा ना।
सब Okay. लोग अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं, और वही बातें हम Yes, समझने की Iftikhar, कोशिश please कर speak. रहे हैं. You want to speak something? Go on. मैम कभी ऐसा होता है कि आदमी बात भी नहीं कर पाता है। सपोज आपने आर्मी ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया, मैं एक इसमें देख रहा था, वो आर्मी ऑफिसर बात नहीं कर पाता अपने घर पे, किसी वाइफ से, बच्चों से, माँ से, बाप से, किसी से भी बात नहीं कर पाता वो। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में या जो जिसकी उसकी वाइफ है वो उसके साथ रिश्ते ही खत्म कर दे। तो वो बात नहीं करने के लिए बात नहीं कर पाता, तो उसने बीच का रास्ता क्या निकाला, वो एडवर्टाइज में देखा था मैं कि वो एटीएम से डेली 100 रुपीज विड्रॉल करता है। तो क्यों करता है? ताकि उसकी फैमिली वाले को या ये वो जिसके साथ रिलेशनशिप में, उसके मोबाइल पे एक मैसेज जाता है विड्रॉल का, तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ वो ठीक है, तभी तो पैसा विड्रॉल किया है। तो बीच का रास्ता कुछ निकालनी चाहिए, ऐसा मैं बोल। ये भी तरीका है ना कम्युनिकेट करने का। बट सर, आपने वो तो वीडियो देखी और मैंने भी देखी है, पर उसके पीछे का मतलब आप समझे? उसके पीछे मतलब ये था कि एक आर्मी वाला जब आप बात करते हैं तो इनके अंदर बहुत कुछ होता है. आई डोंट नो वेदर यू हैव टॉक टू सम आर्मी पर्सन और नॉट, बट आई हैव. मैंने बात की हुई है, एंड दैट टू एक्सट्रीम सिचुएशन में जो रहते हैं सियाचिन बेस, देयर आई हैड अ वर्ड विद पीपल इन आर्मी. उनका जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है. कई बार वो बहुत चीजें फैमिली वालों को कन्वे ही नहीं करना चाहते, और ऐसा होता है कि जब हम एक बार अपने आप को रोक तो लेते हैं, पर जब रोज बात करेंगे तो रोज तो नहीं रोक पाएंगे. तो एक कन्वे का ये है कि मैं बता रहा हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैंने विड्रॉ किया, मैं ठीक ठाक हूँ, बट अगर मैंने फोन उठा के बात कर लिया तो कुछ ऐसा ना कह दूं कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाए. तो यही हम लोग समझाना चाह रहे हैं इस सीजन में कि रिलेशनशिप किसी एक चीज पे नहीं चलता, एक फैक्टर काम नहीं उस करता. सिचुएशन में उसकी अगर गर्लफ्रेंड हम बोलेगी नहीं मुझे मैम मिलना एज है, पार्टी करना है, कीर्ति जाना है, तो क्या करेगा वो? सर कीर्ति ने गर्लफ्रेंड बहुत का तो ब्यूटीफुल सा सिचुएशन कमेंट डिफरेंट हो जाएगा. कीर्ति ने बहुत ब्यूटीफुल सा कमेंट लिखा है कि जब सामने वाले को लग रहा है ये मुझे तंग कर रहा है, वो एक्चुअली प्यार दिखा रहा है, उसमें भी कम्युनिकेट करना जरूरी है ना कीर्ति? रोहित आप कुछ ma'am just said that the army people don't convey their message to their family, that it would be problematic for them. But I think so that's their duty as a man or as a army person, that they should keep their professional life and personal life bit separate. That's their I know Rohit, what you're saying is right, but I'm talking about the personal only. Professional तो बहुत अलग हो जाता है, but अगर आप किसी से personal level पे आर्मी वाले से या किसी soldier से, that too who is posted in Siachen, that is the extreme weather, you know. I think today I'm short of time, but tomorrow if I get time, I would like to share that case with you. That how does it feel? उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है और क्या उनके मन में आ रहा होता है. ऐसी सिचुएशंस उनके मन में आ रही होती हैं कि वो लोग when he shared with me, so it was a very different thing for me. मतलब for a moment I was in a shock kind of thing कि जो मैं सुन रही थी वो किस तरह से वो बता रहे थे मुझे. So, definitely. talking about army, I think we have taken a different turn altogether. ma'am, they I are have actually seen mentally families. more- Rohit, we are 30 seconds away. Please join back on Monday. Okay, And ma'am. we would want to discuss more. When you talk about army families, they also get programmed that way. I've had a lot of families. My kids were in army school, and a lot of mothers and the ladies, the way they take care of the kids and the way they handle the families when the husbands are away is also commendable. So guys, boundaries are important for relationships, and communication is also. God bless you all. Take care.